हाँ सुनो यहाँ पे एवरीवन. Yes, sir. So let us check. As I told, there are number of scientists who propose the theory of evolutions. So according to them, so according to the theory of evolutions, it is said that the first living material must have been formed in the ocean. लिविंग मटेरियल का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म समझते हैं आप लोगों को? प्रोटोप्लाज्म सेल में न्यूक्लियस है कि? सेल में न्यूक्लियस है कि नहीं? Yes, sir. ओके. डज द सेल कंटेन न्यूक्लियस? अरे डज द सेल कंटेन न्यूक्लियस? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज देयर अराउंड दिस न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होता है? Ribosomes. हाँ कुछ भी मत बोलो. साइटोप्लाज्म होता है. क्या होता है? Cytoplasm. साइटोप्लाज्म. अभी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. सो न्यूक्लियस along with cytoplasm is called protoplasm. Got it? Got it? Yes, sir. So according to the theory of evolution, it is said that this protoplasm must have been evolved from in the ocean. As the time passes, what happened? From this protoplasm, first unicellular organisms were developed. Some changes took place in the unicellular organisms and the multicellular organisms of greater complexity were formed. Got it? समझ रहे हैं आप लोगों को? आपको बाद में बोलना है जानवी और सृष्टि ध्यान में रखो. So from the protoplasm, unicellular organisms were developed. Some changes were taken place in that unicellular organisms and the multicellular organisms of greater complexity were developed. But these changes were not sudden. The changes were gradual. The changes were slow. And for these changes to happen now, a period of about 300 crore years taken place यहाँ पे. So इसके लिए 300 crores इतने साल लग गए. These changes development in the living organisms had been all around and multidimensional. ये जो changes हुए living organism में वो सब बारे में थे, all around and multidimensional, and because of these changes the present living organisms are developed. Thus, the progressive development of plants and animals from their ancestor having different structural and functional organization is called evolution. इसी तरह से जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट धीरे धीरे जो डेवलपमेंट प्लांट्स और एनिमल्स में हुई है फ्रॉम देयर एंसेस्टर is called as evolution. बोलो सृष्टि. समरिया बोलो. What I said about the evolution in short बोलो. Samaria, are you there? Samaria, Srishti, are you there? Yes, sir. Samaria, open the camera. Samaria, बोल. About the हमारे जिस तरह से जो चेंजेस होते हैं हमारे इसमें रिजोल्यूशन कहते हैं. Okay. Samaria, I would like to ask you a question. चलो. हाँ, अभी ठीक है. Samaria, tell me, what is protoplasm? What is protoplasm? जिसके अंदर समरिया न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. बोल इतना. न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोल. न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म मिला के टुगेदर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. बराबर है ना? हाँ. टेल मी द वेयर डिड द फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म फॉर्म? न्यूक्लियस. फर्स्ट प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे तैयार हुआ था? The first protoplasm is formed in the ocean. From that protoplasm, what was developed?
unicellular Very good. unicellular Unicellular organisms. Now that unicellular organisms underwent many changes, yes or no? yes And the unicellular organism got converted into what? वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का कन्वर्जन किसमें हुआ? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. समझ रहा है ना? yes sir Somebody tell me any unicellular organism that you know. हाँ बोलो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन सा मालूम है आपको? डोंट यू नो एनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? अमीबा है, पैरामेशियम है, मालूम नहीं? yes sir हाँ समरिया बोल. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोल. अरे एक कौन सा भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोल समरिया. कितना सिंपल क्वेश्चन है. अरे यू आर मल्टी सेल्युलर, आर यू नॉट? आप मल्टी सेल्युलर है कि नहीं? yes हाँ, इसी तरह से वो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ओशन में था, उसमें धीरे से चेंजेस होते गए और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म सब जो हम अभी देख रहे हैं, हमने हमारे सामने जो हमें हमारे आंखों को दिखता है ना, वो सब मल्टी सेल्युलर ही है. यूनिसेल्युलर आपको नहीं दिखेगा, बराबर है ना? सो जो आप आज हमें मल्टी सेल्युलर ये किंगडम दिख रहा है, ये सृष्टि जो मल्टी सेल्युलर दिख रही है ना, वो सब सृष्टि वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुई है. आपके सामने वाली सृष्टि नहीं. किसके बारे में बोल रहा हूं मैं? universe हाँ, यूनिवर्स के बारे में बोल रहा हूँ. ठीक है? yes sir हाँ. अभी क्या हुआ? फॉर दिस चेंजेस टू हैपन the period was too long. The period taken is about 300 crore years. ये सब सृष्टि तैयार होने के लिए कितना टाइम लगा? It is approximately of 300 crore years. And in this long period of time, the changes that were taken place, they were in all respect. Changes सब तरह से थे. The changes were multidimensional. और बिकॉज ऑफ दिस मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है हर तरह से चेंजेस, हर बारे में चेंजेस हो गए. ब्रेन डेवलप हो गया, बॉडी डेवलप हो गई, सब डेवलप हो गया. सो चेंजेस वेयर मल्टी डायमेंशनल एंड बिकॉज ऑफ दिस मल्टी डायमेंशनल चेंजेस द organism, the living organisms are evolved. Therefore, evolutions can also be defined as progressive development of plants and animals. Progressive का मतलब होता है धीरे से होने वाली. Plants and animals from the ancestor. Ancestor का मतलब होता है उनके पूर्वजों से. Having different structural and functional organization. जैसे इसका मतलब जो हमारे पूर्वज थे, उनका स्ट्रक्चर भिन्न था, उनका फंक्शन भी भिन्न था, लेकिन उस एंसेस्टर से, उसी पूर्वजों से हमारी जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुई है, हमारे जो डेवलपमेंट हुई है ना, उसे ही बोलते हैं हम इवोल्यूशन. ठीक है? गॉट इट? yes sir हाँ. Yes, sir. अभी इस इवोल्यूशन का कोई एविडेंस है क्या? एविडेंस समझता है ना आप लोगों को? एविडेंस का मतलब proof So first evidence is called morphological evidences. First evidence is morphological. Morphology का मतलब होता है the body structure, the outer appearance is called morphological evidences. Now check the morphological evidence. Number one, various similarities like structure of mouth, position of eyes, structure of nostril and ear pinnae and thickly distributed hairs on the body are seen in animal. देखो यहाँ पे एनिमल ले. What kind of similarity can you establish here? आपको यहाँ पे कौन सी similarity दिख रही है? Do they have nostril? yes sir yes Do they have eyes? yes Do they have ear pinnae? Ear pinnae का मतलब होता है outer ear. And there are thickly distributed hair on their bodies. बराबर है ना? yes sir इसका ये जो मैमल हम देख रहे हैं, जो मैमल आपके सामने है ना,
तो आपने यदि नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर देखा, आइस का स्ट्रक्चर देखा, यदि आपने स्ट्रक्चर ऑफ और पिनेप आउटर ईयर का पोजीशन देखा, और ऑल दे हैव थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन देयर बॉडीज, उनके बॉडी के ऊपर थिक हेयर है. So something is common between them ना, all these organisms have something common, yes or no? Yes, sir. Yes, इसका मतलब यही होता है, they must have been evolved from the same ancestor. उनका पूर्वज एक ही रहेगा. They must have been evolved from the same ancestor. ये साइंस बोल रहा हो, मैं नहीं. आपको यदि बराबर नहीं लग रहा है तो इट इज ओके, लेकिन इट इज गिवन इन साइंस. इसी तरह से हमने ये पेड़ देखो, यहाँ पे पेड़. नाउ व्हाट इज कॉमन इन देम? नंबर 2 देखो, द लीफ शेप, द लीफ वेनेशन, द लीफ पेटियोल, यू कैन एस्टैब्लिश सिमिलैरिटी हियर. आपको यहाँ पे जो चेक द वेनेशन ऑन द लीव्स. वेनेशन का मतलब होता है, वेनेशन का मतलब होता है द स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स. पेटियोल का मतलब होता है द स्टॉक ऑफ द लीव्स, पानाचा देठ, पानाचा देठ, दैट इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ द लीव्स. हाँ, तो पेटियोल देखो, यहाँ पे पेटियोल का स्ट्रक्चर देखो, लिप शेप देखो, लिप वेनेशन देखो, और लिप पेटियोल. फॉर डिफरेंट प्लांट्स ना, for different leaves on the different plants, the venation is same, the petiole is same, लिप का शेप भी बहुत सारा सेम ही होता है. इसका मतलब ये सब प्लांट जो है ना, उनका एंसेस्टर, एंसेस्टर का मीनिंग होता है पूर्वज. हाँ, इनका एंसेस्टर सेम रहेगा. फ्रॉम दिस मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस वी कैन से दैट all these organisms must have been originated from the same ancestor. समझ रहे हैं यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो. चलो, टेक द स्क्रीनशॉट. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. Yes, sir. Done. आगे आ रहा है, इट इज द एनाटॉमिकल एविडेंसेस. एनाटॉमी, ये देखो, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट. एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी. सो दिस इज द ह्यूमन हैंड. हियर द फोरलेग ऑफ द ऑक्स. हियर इज द पेटिगियम ऑफ द बैट. बैट का मतलब मालूम है, पेटिगियम का मतलब होता है उसका विंग, विंग का अंदर का स्ट्रक्चर ये. एंड दिस इज द फ्लिपर ऑफ द व्हेल. व्हेल मालूम है ना, उसके जो छोटे छोटे पर होते हैं ना, विंग्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लिपर. बैट्स के विंग को हम पेटिगियम बोलते हैं, व्हेल के विंग्स को हम फ्लिपर बोलते हैं. इसी तरह से नाउ इफ यू observe the different organs in the different organisms, can you establish, by the way, superficially is there any similarity? आप जब देखते इस ऑर्गन को, आप कोई सिमिलैरिटी यहाँ पे देख सकते हो क्या? सृष्टि, do you see some kind of similarity in this structure? अरे ऐसे तो सिमिलरिटी कोई भी नहीं है ना, है क्या? बिकॉज दिस ऑर्गन हैव टू परफॉर्म डिफरेंट वर्क इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ह्यूमन में हैंड का काम अलग है, ये ऑक्स का जो फोरलेग है उसका काम अलग है, बैट का जो पेटिगियम है उसका काम अलग है, फ्लिपर व्हेल का जो फ्लिपर है उसका काम अलग है. इसका मतलब देयर इज नो एज इफ सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी. But if these organs are carefully observed, then you can see, you can establish the similarity in their structure and in their joints. ये इनका स्ट्रक्चर और उनके जॉइंट में सिमिलरिटी है. यदि आपने बोन का स्ट्रक्चर देखा और बोन का ये जॉइंट्स देखे ना आपने, तो you can find the similarity in the structure of the bone and in the joints of the bone. This fact indicate that all they must have the common ancestor. इसका मतलब देखो, साइंस यही बोल रहा है कि ह्यूमन के लिए, ऑक्स के लिए, बैट का और व्हेल का, हमारे सारों इन व्हाट
ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर एग रहेगा। एग्री? आपको ये क्या बोलते हैं इसे, बराबर लग रहा है क्या? आप सब लोगों का एंसेस्टर एग है। आर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट जानवी? Yes, sir. आप इस स्टेटमेंट के लिए आपका, बैट्स का, व्हेल का और बुल का एंसेस्टर एक ही रहेगा, ये साइंस बोल रहा है। आर यू एग्री? Sir, if science is telling, then it is right only, na? नो, बट आपको क्या लग रहा है? इट इज ऐसे नहीं बोलते हैं ना। यदि आप साइंस इज टेलिंग, बिकॉज साइंस हैज दैट मच ऑफ नॉलेज, साइंस को एग्री है इसलिए आपको एग्री है, चलो ठीक है मानते हैं। मुझे तो एग्री नहीं है, मैं ये साइंस है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं तो मानता नहीं। क्या लग रहा है आप लोगों को? सृष्टि क्या लग रहा है आपको? जानवी क्या लग रहा है आपको? मैं भी नहीं आप नहीं मानती? क्यों नहीं मानती? साइंस बोल रहा है ना, तो मानना चाहिए ना आपको। सर, कभी कभी साइंस भी रॉन्ग होता है। होता है क्या साइंस भी रॉन्ग? ठीक है, तो मुझे थोड़ा और प्रूफ देने पड़ेंगे मुझे। ये हो गया सेकंड प्रूफ हो गया। टेक दिस स्क्रीनशॉट, टेक दिस स्क्रीनशॉट। हो गया? यस। तो और आगे जाते हैं प्रूफ के लिए। अब ये नेक्स्ट प्रूफ आ रहा है, इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नेक्स्ट प्रूफ इज वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है द डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स, अंडर डेवलप्ड एंड यूजलेस ऑर्गन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल बॉडी। ऐसे कोई ऑर्गन सब एनिमल्स में, सब प्लांट्स में मिलते, जो ऑर्गन एक तो डेवलप नहीं हुए, जो ऑर्गन यूजलेस है और जो ऑर्गन डीजेनरेट हो रहे, नष्ट हो रहे, ऐसे जो कोई ऑर्गन्स है ना, उसे बोलते हैं हम वेस्टिजियल ऑर्गन। समझ में आ गया? वेस्टिजियल का मतलब होता है डीजेनरेटेड, इसका मतलब जो नष्ट हुए हुए और जो नष्ट होने वाले हैं, डीजेनरेटेड। अंडर डेवलप और जो डेवलप हो रहे फिर भी यूजलेस हैं। ऐसे जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में, हम हमारे ही नहीं, सब एनिमल्स में, सब प्लांट्स में मिलते हैं, दिस ऑर्गन्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स एंड द वेस्टिजियल ऑर्गन्स मे बी द प्रूफ ऑफ थियरी ऑफ इवोल्यूशन। कैसे? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है, सामने एक डायग्राम है क्या? यस सर। यहाँ पे मैंने लिखा है अपेंडिक्स। डू यू नो दिस ऑर्गन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग, अपेंडिक्स? अरे कभी अपेंडिक्स के बारे में सुना है क्या? यस सर। Now this organ is Yes, there sir. at the joint of small intestine and large intestine। जहाँ पे small intestine और large intestine joint होता है ना, उसी जगह पे ये अपेंडिक्स है। Now tell me, does this appendix have some functions in our body? ये अपेंडिक्स का कोई काम अपने बॉडी में है क्या? कुछ भी नहीं। नो, इट इज यूजलेस। दैट मीन्स अपेंडिक्स, ये जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में है ना, इट इज यूजलेस ऑर्गन, बट सेम अपेंडिक्स इज प्रेजेंट इन द व्हाट क्लास, हर्बिवोरस एनिमल्स। जो हर्बिवोरस एनिमल मीन्स कैटल है, डियर है, एलिफेंट है, जो हर्बिवोरस एनिमल्स है ना, उनके बॉडी में ये अपेंडिक्स है और वहां पे अपेंडिक्स फंक्शनल है। जो कैटल होते हैं ना, वहां पे अपेंडिक्स का काम, ये जो ग्रास खाते हैं ना, उसमें जो सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करना होता है। सो इन केस ऑफ हर्बिवोरस एनिमल्स ना, दिस अपेंडिक्स इज फंक्शनल। तो वहां पे अपेंडिक्स फंक्शनल है, ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स नॉन फंक्शनल है, लेकिन दोनों के बॉडी में तो अपेंडिक्स है ना। इसका मतलब वी एंड ऑल दिस रूडिमेंट्स, रूडिमेंट्स का मतलब होता है शाकाहारी, हाँ, herbivorous. So appendix and all these rudiments they have common ancestor। इसका मतलब होता है क्योंकि दोनों में एक ऑर्गन कॉमन मिल रहा है। उसी तरह से by the way, do you know about the wisdom teeth? We get the wisdom teeth after the particular age। एक एज आने के बाद हमें विजडम टीथ कई लोगों में आते, कई लोगों में शायद नहीं आते विजडम टीथ।
This wisdom teeth has nothing to do with the wisdom. अक्कलदाड़, अक्कलदाड़ समझता है क्या? शायद सुना होगा ना? Yes, Yes, sir. sir. By the way, this wisdom teeth na is non-functional in case of human being. लेकिन it is the same wisdom teeth is observed in monkey. ये wisdom teeth monkey में भी होती है. इसका मतलब we monkey and the human being must have some common ancestor. इसी तरह से यहाँ पे देखो ईयर मसल. बाय द वे, आपके जो ईयर मसल है, द मसल दैट कनेक्ट द पिना, पिना समझता है नहीं, आउटर ईयर को हम पिना बोलते हैं. So the muscle that join the pinna are called ear muscle, but these ear muscles are non-functional in case of human being. Can you move your ears by using the ear muscles? जैसे कि बाकी सब एनिमल अपने ears क्या करते हैं? They can erect the ear, they can move the ear, outer ear. Yes or no? Yes. बाकी सब एनिमल में आउटर ईयर मूव होते हैं कि नहीं? अरे sometimes you might have seen the dog erecting the ears and barking. Yes or no? That means Yes. Yes. or they can move the ear in the direction of sound, but we cannot. इसका मतलब हमारे यहाँ में जो ईयर मसल है ना वो नॉन फंक्शनल बन गए, बाकी सब एनिमल में ईयर मसल फंक्शनल है. इसी तरह से टेलबोन देखो, ये टेलबोन है और इट इज कॉल्ड कॉकिक्स टेलबोन. The tailbone is there in the human being, this tailbone is there in the monkey, but in the monkey na the muscle of the tailbones are used for swinging the tail. जो टेलबोन के मसल है ना वो मसल मंकी में वो टेल स्विंग करने के लिए यूज किए जाते हैं. But in case of human being, the muscle of the tailbone are non-functional. So there are some organs present in the different animals' body. The organs are functional in some animals, whereas the same organs are non-functional in case of other animal. Such organs are called vestigial organ, and vestigial organ is the proof of evolution. So we'll stop here. Write down your homework. आपका होमवर्क लीजिए. राइट द नोट ऑन morphological evidences, anatomical evidences and vestigial organ. लिखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. Write the notes on what? Morphological evidences, vestigial organs and anatomical evidences. और कल के डेफिनेशन, सॉरी आज जो मैंने डेफिनेशन लिए ना सब वो लर्न करने. लर्न द डेफिनेशन. लर्न. tomorrow Yes, sir. I will ask the definition. डेफिनेशन में पूछूंगा फिर से कल. So you must be ready for that. ठीक है? Okay,